السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم استوى الى السماء فهي دخان وقال في موضع آخر ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دلائل کے ساتھ اس بات کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کس طرح پھیلایا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بنایا، آسمان کو کیسے پھیلایا، اور آسمان کی اصل حقیقت کیا ہے، تفصیل سے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک دے دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ ناظرین کرام، آج کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے حضرات نے آسمان کے سلسلے میں اپنی اپنی آراء کو ظاہر کیا ہے۔ کسی نے آسمان سے مراد کہا کہ اسپیس ہے، یعنی خلا ہے، جہاں پر ہوا کے اوپر جو حصہ خالی حصہ ہے، آسمان سے مراد وہی ہے۔ اور چونکہ سائنسدان آسمان کو مانتے نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے اس کی حیت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آسمان 7 ہیں، تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کو اللہ نے کیسے بنایا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس جہاں تک قرآن، حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارات دیے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ معترضین کے اعتراضات اس بنیاد پر ہیں کہ آسمان کا لفظ، یعنی عربی میں سما کا لفظ بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کبھی کہا گیا بارش کے معنی میں، کبھی کہا گیا کرۂ ہوائی کے معنی میں، کبھی کہا گیا زمین کی چھت کے بارے میں، اور دیگر معنوں کو یہ لفظ سما مشتمل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم آج اس کا تفصیلاً خلاصہ کریں گے کہ لفظ سما سے کیا مراد ہیں، اور آسمان کس کو کہتے ہیں۔ آیا یہ اسپیس کا نام ہے جو خلا میں واقع ہے، یا پھر یہ حیت والے آسمان ہیں؟ تو اس کے لیے بنیادی طور پر 3 باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں لفظ سما اور سماوات کا لفظ 3 معنوں کے لیے بنیادی طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس میں سے پہلا لفظ سما ہے، دوسرا سماء دنیا ہے، تیسرا 7 سماوات یعنی 7 آسمان کا لفظ ہے۔ اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا کیسے ہیں۔ عربی لغت کے اندر سما یعنی السما، سما یسمو سماعن سے بنا ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں بلندی کے، یعنی کسی چیز کا بلند ہونا۔ لہذا قرآن کے اندر سما تقریباً 5-6 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے اندر لفظ سما بادل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 22 میں آیا ہے، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے آسمان یعنی بادل سے پانی کو برسایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر لفظ سما بادل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر لفظ سما بادلوں کی جو فضا ہوتی ہے، جو بادلوں کے ارد گرد جو ہوائیں چلتی ہیں، جو بادلوں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہیں، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو بادلوں کو کھینچ لاتے ہیں
हवाओं की फ़ज़ाओं में जैसे अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन बादलों में से पानी को बरसाते हैं। तो मालूम हुआ कि यहाँ पर समा से मुराद बादलों की फ़िज़ाएँ हैं जो बादलों को खींच कर लाती हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने समा से मुराद खुद बारिश को लिया है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनाम आयत नंबर 6 के अंदर फरमाया, वअरसलना अलैहिमुस समा मिदरारा, कि हमने उन पर आसमान को मौसलाधार बारिश की शक्ल में बरसाया। तो यहाँ पर समा बारिश के माने में है कि अरसलना समा अलैहिम मिदरारा, कि हमने उन पर आसमान को बरसाया, यानी बारिश को बरसाया। कैसे बरसाया? मिदरारा, मौसलाधार बारिश की शक्ल में। लिहाजा यहाँ पर समा बारिश के माने में आया है। इसी तरह चौथे नंबर पर कुर्रे हवाई, यानी हवा की गोद भी इसे कह सकते हैं। हवा के अंदर जो खाली हिस्सा है उसको भी समा कुरान के अंदर कहा गया है। जैसा कि सूरह नहल आयत नंबर 79 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अलम यरो इलत तैरी मुसख्खरातिन फ़ी जव्विस समा, क्या वो लोग नहीं देखते कि परिंदे कैसे बिखरे हुए हैं, यानी उड़ रहे हैं समा के जौ में, यानी आसमान की, यानी फ़ज़ाओं की गोद में, कुर्रे हवाई में। तो मालूम हुआ कि यहाँ पर समा से मुराद कुर्रे हवाई है, यानी हवा के अंदर जो खाली जगह है, जो स्पेस है, वो यहाँ पर समा से मुराद लिया गया है। जिसके माने आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने समा को कई और मानों में इस्तेमाल फरमाया है। लिहाजा समा का एक माना कुरान के अंदर घर की छत भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वजअलना समा सकफ़म महफूज़ा। सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 में आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हमने समा को मजबूत छत बनाया है, यानी आसमान को, स्पेस को, या फिर कहिए कि जो हमें नज़र आता है उस आसमान को हमने मजबूत छत बनाया है। मुफस्सिरीन ने कई एक माने इसके लिखे हैं। अलगर्ज़ साइंसदानों की तहक़ीक़ के मुताबिक भी ज़मीन के ऊपर, हवाओं के ऊपर जो फ़ज़ा है, जो खला है, वहाँ पर कई एक ऐसे पर्दे हैं जो इस ज़मीन को बहुत सारे ख़तरात से बचाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ों से बचाते हैं। जहरीली मादे होते हैं, जहरीली गैसेस होते हैं, जिससे इस ज़मीन की हिफाजत होती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने समा को महफूज छत बनाया है। और इसी तरह समावी कायनात, यानी आसमानी दुनिया, कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया की आयत नंबर 104 के अंदर फरमाते हैं, यौम नत्विस समा का तय्यिस सिजिल लिल कुतुब, कि उस दिन यानी क़यामत के दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे कि सिजिल नामी फ़रिश्ता किताबों को लपेटता है। तो यहाँ पे समा से मुराद वो आसमान हैं जो हमें नज़र आते हैं, यानी समावी कायनात के आसमान जो हय्यत और माहियत की शक्ल में मौजूद हैं। तो ये तमाम माने हैं समा के, कभी बारिश, कभी हवाई कुर्रा, कभी बादलों की फ़ज़ा, तो कभी बादल, तो कभी घर की छत, तो कभी समावी कायनात। लेकिन इसका लग़वी माना जब हम मुराद लेते हैं वो बुलंदी है, तो ये सारे माने सही अपनी जगह पर फिट हो जाते हैं कि हमने बुलंदी से बारिश को बरसाया, हमने बुलंदी में बादलों को एक दूसरे से टक्कर दी, और हमने बुलंदी पर ऐसा मजबूत छत कायम किया है जो इस ज़मीन को बचाता है, और हमने बुलंदी पर उन आसमानों को भी बनाया है जो हय्यत और माहियत वाले हैं। अगर लग़वी माना मुराद लिया जाए तो सारे माने इसमें जमा हो जाएंगे और कोई एतराज़ नहीं रहेगा। और दूसरा माना जो बुनियादी तौर पर कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो है समाए दुनिया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुल्क के अंदर इस तरह फरमाया है कि वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा, कि हमने आसमान से, ज़मीन से करीब जो आसमान है, ज़मीन से करीब जो आसमान है उसको सितारों से और चरागों से, जलती हुई चरागों से मुज़य्यन कर दिया है। तो इससे मुराद वो आसमान है जो हमें नज़र आता है।
اور اللہ तबारक ताला ने इसको पहला आसमान गर्दाना है, समाए दुनिया अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है। तो इससे मालूम होता है कि समाए दुनिया है, इसके ऊपर और भी आसमान हैं, जैसा कि खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं सुम्मा इस्तवा इलस समा फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। अल्लाह तबारक व ताला ने आसमानों की तरफ तवज्जो फरमाई और अल्लाह ताला ने एक के बाद दीगर 7 आसमानों को अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया है। तो इससे मालूम होता है कि आसमान 7 हैं। लिहाजा सारी तकरीर से मालूम होता है कि कुरान के अंदर जो लफ्ज़ समा इस्तेमाल हुआ है उसका मानी सिर्फ आसमान नहीं है जो हमें नज़र आता है, बल्कि बुलंदियां हैं। कभी अल्लाह तबारक व तआला उस बुलंदी से बारिश मुराद लेते हैं, कभी उस बुलंदी से छत मुराद लेते हैं, कभी उस बुलंदी से कुर्रे हवाई मुराद लेते हैं, कभी उस बुलंदी से बादल, तो कभी बादलों की फ़िज़ा अल्लाह तबारक व तआला मुराद लेते हैं। लेकिन इससे एतराज़ नहीं करना चाहिए कि ये हूबहू हैयत वाला माहियत वाला आसमान है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो माहियत वाले आसमान 7 आसमान बनाए हैं वो कैसे बनाए, तो खुद कुरान कहता है कि अन्ना समा वल अर्ज़ कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा, कि ज़मीन व आसमान दोनों मिले हुए थे, हमने उनको जुदा जुदा कर दिया, जिसको साइंस के मुताबिक बिग बैंग भी कहते हैं, जिसका खुलासा गुज़िश्ता वीडियो में भी हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह ज़मीन व आसमान को जुदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला जुदा होने के बाद की हालत को भी कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं सुम्मा इस्तवा इलस समा, फिर अल्लाह आसमानों की तरफ तवज्जो फरमाए, समा की तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो की, वही दुखानुन, तो दुखान की शक्ल में था। दुखान किसको कहते हैं, इसमें मुफस्सिरीन के बड़े अक़वाल हैं। बाज़ कहते हैं कि गर्म हवाओं को, बाज़ कहते हैं बुखारात को, बाज़ कहते हैं कि गैसेस थे जिसको आज गैस कहते हैं, यानी गर्म गैस थे जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अम्र कुन के ज़रिए से हुक्म दिया कि तुम फैल जाओ, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया कि हमने ज़मीन व आसमान को हुक्म दिया कि तुम मेरी इताअत बजा लाओ, चाहे तुम रज़ामंदी के साथ उस इताअत को कबूल करो या नाखुशी होकर कबूल करो, लेकिन कबूल तो करना ही है। तो उन दोनों ने कहा अतईना ताईन, कि हम तेरी इताअत के साथ फैलते हैं। लिहाजा अल्लाह ने अम्र कुन के ज़रिए से जो धुएं के जैसा कुछ गैसेस थे, जो धुएं की शक्ल में कुछ बुखारात थे, अल्लाह के हुक्म कुन के ज़रिए से वो फैलते रहे। लिहाजा आज की तकरीर से मालूम हुआ कि आसमान 7 हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह इनको बनाया है। और जो लफ्ज़ समा से इधर उधर की बातें की जाती हैं तो ये एतराज़ महज़ है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे मुराद सिर्फ बुलंदी है और हैयत वाले आसमान 7 हैं। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पहले बनाया या आसमान को पहले बनाया है, क्योंकि 2 आयतें हैं जिसमें एक आयत में कहा गया पहले ज़मीन बनी, एक आयत में कहा गया पहले आसमान बना। दोनों में तत्बीक की क्या शक्ल है इसको हम आपके सामने बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सारी बातों से अपनी कुदरत को समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ, अपनी मारिफत अता फ़रमाएँ और अपने अहकाम पर कारबंद होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।